सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड नीट पीजी। सो आज का टॉपिक है अपना स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। नाउ ये टॉपिक जो है ये काफ़ी एक हाई यील्ड टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द मार्कर्स जो भी है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स। बेसिकली ये दोनों चीज़ें ठीक है, एंड द कीमोकाइंस। ओके, सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन तब होता है व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल इंजरी इनसाइड द बॉडी। एंटीजेंस आ जाते हैं सो दैट द बॉडी हैज़ टू रिस्पॉन्ड विद सम इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सो इसके लिए देयर विल बी रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। अभी न्यूट्रोफिल्स सबको पता है कि दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड। सो जैसे मानो ये कोई ब्लड वेसल है, यहाँ पे अपने सब न्यूट्रोफिल्स है। नाउ दीज न्यूट्रोफिल्स विद इनको जो है ब्लड वेसल से बाहर जाना चाहिए सो दैट दे कैन रीच टू द साइट ऑफ इंजुरी एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? सो इसके लिए वी हैव अ 4 step process that is called that we are going to study today. So the first step is margination and rolling. Margination and rolling. Second step is adhesion. Third step is diapedesis. And the fourth step is migration. Migration with the help of chemokines so that the neutrophils can go to their side जहाँ पे उनको जाना है and they can cause the necessary immune response at that side. Okay, now let's understand this with the help of an image. अभी ये image is from Robbins. So first step जो है वो मैंने बताया आपको which is margination and rolling. Okay, so ये step होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, रोलिंग। बट इसके साथ मार्जिनेशन भी होता है। सो व्हाट इज़ मार्जिनेशन? बेसिकली मार्जिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच दीज न्यूट्रोफिल्स कम क्लोज टू द एंडोथीलियम। मतलब ये थोड़े मार्जिनलाइज हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, मार्जिनेशन एंड दे स्टार्ट रोलिंग ओवर द एंडोथीलियम। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ मार्जिनेशन एंड रोलिंग। अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच ब्रिंग अबाउट मार्जिनेशन एंड रोलिंग। So these factors are P-selectin and E-selectin. Now E-selectin is present on the endothelium, whereas P-selectin is present on the platelets. Okay, so this is endothelium and P-selectins are present on the platelets. तो ये जो ल्यूकोसाइट होता है इसके ऊपर this factor is present which is called as a Sialen-Lewis X modified glycoprotein. This glycoprotein goes and binds with the E-selectin and the P-selectin. Now एक याद रखना है कि E-selectin का यहाँ पे मार्कर इज CD62. ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप दैट इज मार्जिनेशन एंड रोलिंग। देन देयर इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप अपना क्या है? एडेशन। एडेशन माने टाइट बाइंडिंग ऑफ द न्यूट्रोफिल विद द सिलेक्टेंस। ओके, सो ये जो टाइट बाइंडिंग होता है वो किसके वजह से होता है? तो स्टेबल एडेशन दिस इज ब्रॉट अब by the factor integrin lichen, which is the ICAM1. Okay, so this ICAM1 is present on the endothelium and इसका marker है CD54. Okay, so CD54 is the marker of ICAM1. But न्यूट्रोफिल या फिर ल्यूकोसाइट पे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ICAM1 से आके बाइंड करते हैं? So these factors are LFA1 and MAC1. Okay, so LFA1 and MAC1 are those which go and bind to the ICAM1 causing stable adhesion, that is tight binding. Now LFA1 का दूसरा marker है CD11 and MAC1 का है CD18. So this is what you have to remember. Okay, now the third step. Third step is diapedesis. Diapedesis is the step by which this leukocyte, after getting tightly bound to the endothelium, it goes outside by this space which is created. So this step is called as diapedesis. Diapedesis is brought about PCAM1 and CD31. मतलब वही PCAM1 is CD31. Okay. The final step is migration. Migration क्या होता है? Migration मतलब which is brought about by chemokines, and this migration is the process by which the leukocyte or the neutrophil reaches the site of injury to cause the necessary immune response. Now, the chemokines have to call the neutrophil for that purpose, right? So, कौन से chemokines होते हैं which bring about this step? So, the chemokines which are responsible are interleukin 8, C5a,
LTB4, 5-HETE, and last step is kallikrein. Okay, so this is the basics of inflammation, जहाँ पे बहुत सारे मार्कर्स ये सब इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है. एंड ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. एक बार हम लोग इसे एक समराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट. सो फर्स्ट स्टेप आपको सबको पता है वॉज मार्जिनेशन, राइट? मार्जिनेशन एंड रोलिंग. मार्जिनेशन एंड रोलिंग में न्यूट्रोफिल पे क्या प्रेजेंट है और एंडोथेलियम पे क्या प्रेजेंट है, जो ये स्टेप कंप्लीट करता है. सो न्यूट्रोफिल पे है अपना साइलिल, लूवी, एक्स फैक्टर, एंड एंडोथेलियम पे है ई सिलेक्टेंस and P selectins, but P selectin is on platelets. Okay, मैं ये जो चार्ट है मैं इसका एक फ्लैश कार्ड जैसा बना के डाल दूंगी, ठीक है? मार्जिनेशन एंड सेकेंड स्टेप वाज एडेशन विच इज टाइट बाइंडिंग. दिस इज ब्रॉट अबाउट न्यूट्रोफिल पे कौन से, LFA1 एंड MAC1. LFA1 का मार्कर क्या है, CD11. MAC1 का है CD18. ई सिलेक्टिन का क्या था, CD62. ठीक है, एंड दिस यहाँ पे जाके बाइंड करता है वो ICAM1 को. ICAM1 का मार्कर है, याद रखना, CD54. ओके, थर्ड स्टेप वाज डायापेडेसिस. डायापेडेसिस के लिए न्यूट्रोफिल पे ही होते हैं PCAM1 which is CD31. Okay, and finally there is a step called migration which is brought about by the chemokines, and ये जो chemokines होते हैं those are interleukin 8, C5a, LTB4, 5-HETE, and kallikrein. Okay, so this is the summary of steps of inflammation and the related markers. I hope you guys will find it helpful. Thank you so much for watching.